This call is now being recorded. हाँ जी, ठीक है। हर्षिता, फिर हर्षिता से स्टार्ट करते हैं। ओके हर्षिता, बताइए। Firstly, we have seen what is meant by periodic function, then classification of elements and periodicity in their properties. Then we have seen Dobereiner traits, then law of octaves, then periodic law of Mendeleev. Then we have seen modern periodic law. Very good. Then we have seen tricks to find number of elements in a period. Then we have studied nomenclature and how to determine period number, block number and group number. वेरी गुड। बस बस हर्षिता, बहुत सारा बता दिया। ओके ग्रेट बच्चे। ओके नेक्स्ट कौन कंप्लीट करेगा इसको? मिशबा, ओम, अनुष्का। बच्चों प्लीज ट्राई टेल मी व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, है ना? कोई भी नहीं ट्राई करेगा? हो, आप लोगों का सैटरडे को टेस्ट है। Ma'am, we have learned ionization enthalpy. Very good. Okay. Okay, what we have learnt in ionization energy, Yashika? Ma'am, the energy required to remove an isolated electron from its gaseous state. Okay. Amount of energy required to remove most loosely bounded electron from an isolated gaseous atom. है ना? This was the definition. है ना? This was the definition. And ionization energy is always endothermic. True or false? True. Pakka? True? Yes, ma'am. True. Okay. Great. Yes. तो बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो दीज आर द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अपन ने ऑलरेडी कौन कौन सी डिस्कस कर ली है? आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियाई एंड ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अलोंग द पीरियड, है ना, डाउन द ग्रुप, है ना, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है, ओके। तो आर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ओके आज हम बेसिकली समझने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट, उसके फैक्टर्स क्या होंगे, एंड देयर आर, अब इनऑर्गेनिक है तो देयर आर सम एक्सेप्शंस एज वेल, तो वो भी हैं, तो वो भी हमें करना है। तो बच्चे फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंड एंथैल्पी। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर दिस इज योर न्यूक्लियस, राइट, एंड दिस इज योर एनर्जी शेल्स, राइट। ओके बच्चों, if an electron added into outermost electron, क्या बोल रही हूं मैं? If an electron enters into outermost shell, then energy is released. This is called electron gain enthalpy. अगर आप इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा रहे हो, कहाँ एडिशन करा रहे हो? outermost shell में, then energy will release. This is called electron gain enthalpy. What was the ionization energy? Ionization energy was amount of energy required to remove most loosely bounded electron from an isolated gaseous atom. And what is electron gain enthalpy? Amount of energy released when an electron enter into outermost shell of an isolated gaseous atom. Difference clear है between ionization energy and electron gain enthalpy बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी को हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंथैल्पी डिनोटेड बाय डेल्टा एच। okay, and we are discussing electron gain enthalpy, then you can write delta HEG. This is your electron gain enthalpy. ठीक है, defined as the enthalpy change take place when an isolated gaseous atom of the element accept an electron to form a monovalent gaseous anion. Let us consider this is atom X. ठीक है, gaseous atom, this is X. When this atom accept an electron, it become negatively charged, right? This is your neutral, right? Neutral means protons and electrons are equal.
if it's accept an electron, then it will become negatively charged. Are you getting my point? Yes, ma'am. जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज. ठीक है. एंड इन आयनाइजेशन एनर्जी न्यूट्रल एटम बिकम पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, फ्रॉम इट्स आउटर मोशन. ठीक है, तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय डेल्टा HEG. ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद हम चलते हैं. ओके, कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है. वो क्या है? फर्स्ट, गायत्री आ गई क्या? गायत्री, आर यू देयर? नहीं? ओके ओके ओके, 2 स्टूडेंट्स. एक सेकंड रुको बच्चों. ओके, नाउ गायत्री इज ओके. ठीक है बच्चों. ओके, let us consider an example. ठीक है, we can take an example to understand the concept of electron gain enthalpy. Let us take an example of fluorine. बच्चों, you know ना electronic configuration of fluorine? Yes, ma'am. Okay, पहले मुझे ये बताओ, can I extend this class up to 7 PM? चलेगा ना? Yes, ma'am. Yes, Because ma'am. I have to complete this chapter and you know ना कि on Sunday Yes, you will have test of this chapter, तो आपको complete करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए. तो fluorine electronic configuration would be 1s2 2s2 2p5. Right? If fluorine accept an electron, then it become F negative and the configuration will be 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6. It means it becomes stable when electrons are added into 2p5 because 2p6 is fully filled. Right? It means in this case delta H is negative. You know there are 2 processes, endothermic and exothermic बच्चों. Endothermic and exothermic. Have you heard these terms? Endothermic and exothermic. सुना है बच्चों इनके बारे में? Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों ने सुना हो. तो बच्चे, exothermic is the process where the energy is released. In this case, sign of delta H is negative. It means energy is released during the process, right? And in endothermic process, delta H is positive. It means energy is absorbed during the process. वैसे ये दोनों term will discuss in thermodynamics, but आप लोगों को basic idea होना चाहिए about endothermic and exothermic process. Endothermic process is the process in which delta H is positive. It means energy is absorbed during the process, like in ionization energy. ठीक है, we have to give energy to remove most loosely bounded electron. ठीक है, in electron gain enthalpy process is exothermic, in which electron enter into outermost shell. Clear है difference दोनों के बीच में, endo और exo? Yes, ma'am. Okay बच्चा. Okay, next term. Okay, let us consider another example, nitrogen. बच्चों, tell me the electronic configuration for nitrogen. 1s2 2s2 Yes, 1s2. 2p3 Okay, 2p3. clear है सभी को? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p3, राइट? गायत्री ठीक है? Okay, ma'am. ओके मैम, ठीक है. ओके, गायत्री सेइंग ओके, देन इट्स ओके. ओके, तो तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 1s2 2s2 2p3. इट इज ऑलरेडी हाफ फिल्ड बच्चों. Yes, ma'am. Okay, एक सेकेंड, someone is trying to join the class. Mehraj. Okay. तो बच्चे, when an electron, please notice my point, when an electron add into 2p subshell, it become N negative. That would be 1s2 2s2 2p4. Please tell me which one is stable configuration, 1s2 2s2 2p3 or 1s2 2s2 2p4? First one is stable. The First first one is one. stable. It means in this process energy is not going to be released, rather than it is endothermic process. It means delta H should be positive, है ना? क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना चाहता. It is already half filled configuration, stable configuration.
ठीक है, when an electron enters into 2p subshell, it become 2p4, which is not stable as compared to 2p3, right? In this case, we have to give energy to enter an electron in its 2p subshell. So that is why delta H is positive. ठीक है, ऑलरेडी वो स्टेबल है, आप उसमें अगर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, वो खुशी खुशी थोड़ी ना लेगा, है ना? इट विल नॉट बी हैप्पी कि आजा भाई इलेक्ट्रॉन आजा, उसको चाहिए ही नहीं। ठीक है, अगर आप इंसिस्ट करोगे भाई मैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, देन आपको एनर्जी देनी पड़ेगी फिर। ठीक है, क्योंकि जो रिपल्शन फेस होगा उसको ओवर करने के लिए यू हैव टू गिव एनर्जी। ठीक है, बताइए बच्चा, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, ma'am. इट मींस मैंने दो बातें बोल दी बच्चे। इन केस ऑफ फ्लोरीन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, व्हाइल इन केस ऑफ नाइट्रोजन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Are you getting my Yes, point? ma'am. Depends on the nature of element. Depends on the nature of element. Like fluorine, it will be happy अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, because it will become 2p6 fully filled, है ना? But nitrogen will not be happy क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, it will become 2p4, right? So it depends on the nature of element whether the electron gain enthalpy is positive or negative. I'm talking about first electron gain enthalpy बच्चों। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे प्लीज अपनी, राइट इन योर नोटबुक। इन जनरल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। अगर हम जनरल बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि इन जनरल आप प्लीज बताइए कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव और पॉजिटिव, तो आप बोलोगे नेगेटिव होता है। ठीक है, बट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहां तक? तो गिव मी थम्स अप। ठीक है रिपीट में। ओके बच्चे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गायत्री, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, like nitrogen, it's already 2p3 half fill configuration. When the electron add into 2p3, it become 2p4, which is not as much stable as compared to 2p3. So in this case, delta H positive. But in general, if I'm saying the general statement, then first electron gain enthalpy is negative. I'm also saying it depends on nature of element as well. Clear? Yes, ma'am. ओके, जो जितनी भी मैंने आप लोगों को कहानी, जितनी भी मैंने आपको ये ज्ञान दिया है, वो सारा ज्ञान जो है इसमें लिखा है। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाते हैं, ठीक है, तो दिस इज फॉर योर नोट्स बच्चों, दिस इज फॉर योर नोट्स। ओके, कैन यू नोटिस दैट? देखो, इन केस ऑफ फ्लोरीन -328, इट मीन्स एनर्जी इज released, and in case of nitrogen, delta H is equal to +31 kilojoule per mole, because electron gain enthalpy is your energy and the unit of energy is kilojoule per mole, joule per mole, electron volt per atom. ठीक है, ओके बच्चों, एक चीज देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिखा हुआ है। कैन यू ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 328 and in this case electron affinity is -31 kilojoule per mole. ठीक है बच्चों, बोथ टर्म आर सेम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोथ आर सेम, यू कैन यूज फ्रीक्वेंटली, यू कैन यूज साइमल्टेनियसली। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, देख पा रहे हो बच्चों? ठीक है, साइन दोनों का क्या है यहाँ पे अपोजिट है, बस ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बच्चों, मैं लेट्स टेक एन एग्जांपल जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी ऑक्सीजन का एग्जांपल। ठीक है, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। ओके बच्चों, गायत्री प्लीज टेल मी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। गायत्री प्लीज टेल मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्सीजन। Namrata, yes. 1s2 2s2 2p4.
वेरी गुड, ठीक है, 1s2 2s2 2p4, ठीक है, ओके ओके. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू outermost shell and for oxygen what is the outermost shell, 2p वाला shell, right? तो इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 2p shell, तो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 1s2 2s2 2p5 बच्चों, 1s2 2s2 2p5. then energy is released in this process. delta H should be negative, ठीक है, delta H electron gain enthalpy will be negative, ठीक है. this is your first electron gain enthalpy when an electron add into 2p shell. clear है, ठीक है, okay बच्चों. let's take a second electron gain enthalpy when, देखो बच्चों, in case of O negative the configuration is 2s2 1s2 2s2 2p5, right? if you want to add an electron in its outermost shell then बच्चों it becomes 1s2 2s2 2p6 बच्चों and it becomes O2 negative. एक मिनट थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, like this. देखिए बच्चों, 1s2 2s2 2p6. I am talking about second electron gain enthalpy बच्चों, ठीक है. Okay, please tell me according to you the sign of electron gain enthalpy. It will be positive or negative? Positive. Positive. Shikha is saying positive. I think Positive. everyone is saying positive. Why? Why positive? Because it is stable configuration. बट स्टेबल कॉन्फिग नहीं नहीं नहीं, अगर स्टेबल है तो यहाँ पे तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होनी चाहिए ना. इफ द कॉन्फिगरेशन इज स्टेबल देन द मोर एनर्जी विल बी रिलीज इन दिस प्रोसेस. प्लीज कीप इन माइंड वन पॉइंट कि इफ, ध्यान से सुनना, इफ द प्रोसेस इज फेवरेबल इट मीन्स अगर आपका कॉन्फिगरेशन स्टेबल है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन आफ्टर द एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन योर कॉन्फिगरेशन बिकम हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, एनर्जी विल बी रिलीज्ड. ध्यान रखना मेरी ये बात, ठीक है. जितना ज्यादा आपकी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद स्टेबल बनेगी, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड. तो यहाँ पे तो देखो ये 2p6 बन रहा है, तो why are you saying कि इलेक्ट्रॉन gain enthalpy is positive? बताओ, can you change your answer? Tell me. कोई बताना चाहेगा, किसी ने अगर ये चैप्टर बुक से पढ़ा है, कैन एनीवन टेल मी? आदित्य, ओम, कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव में. नेगेटिव, ठीक है, ओके. बट मैं आई वुड बी सेइंग कि डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर सेकंड प्रोसेस इज पॉजिटिव. ध्यान से सुनना अभी मैं क्या बोल रही हूँ बच्चे. देखिए, आफ्टर एन एडिंग इलेक्ट्रॉन इन 2p, right, it become 2p6 fully filled, ठीक है, this is your fully filled configuration. तो it should be delta H is equal, it should be negative, electron gain enthalpy should be negative, but in actual experiment it found that electron gain enthalpy is positive. Are you getting my point? एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है. रीजन क्या है, ध्यान से सुनना बच्चे. दिस इज ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ठीक है. इफ यू एड एन इलेक्ट्रॉन, प्लीज ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी केयरफुली. इफ यू एड एन इलेक्ट्रॉन इन 2p, देयर इज अ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है, देयर विल बी एन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. ये पहले ही ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज, अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या होगी, रिपल्शन, धक्का मुक्की होगी, रिपल्शन होगी. और जब रिपल्शन होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी टू ओवरकम द रिपल्शन. It means the overall process is endothermic. That is why second electron gain enthalpy in case of oxygen is positive. Most important question for your board exam, for your NEET exam, or any other entrance exam. Question can be asked कि after an adding of electron in O negative, it become 2p6. ठीक है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है. Why? रीजन क्या बोलोगे आप लोग? देयर विल बी
inter-electronic repulsion after adding of an electron into 2p subshell. ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, ओके ओके, देखिए बच्चों, क्लियर कीजिए यहां से. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव -141. इट मींस इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है आफ्टर एन एडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखिए बच्चों +780. इट मींस एनर्जी इज absorbed, energy is amount of energy required to overcome the repulsion, right? तो +780. ठीक है, अगर बच्चों आप if you add these two equation, first and second, you have 639 किलोजूल पर मोल. प्लीज देखिए 639 किलोजूल. डोंट मेमोराइज दिस एक्सपेरिमेंटल डाटा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं. ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मेमोराइज नहीं करनी है बच्चों. यू हैव टू लर्न ओनली कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, इट मींस ठीक है, आई विल राइट इट डाउन. 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लीज लिखिए. इन जनरल, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चों प्लीज राइट इन योर नोटबुक. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन, टेल मी, डिपेंड्स ऑन Nature of the Material. element. yes, nature of the element. Very good. Second point is second electron gain enthalpy is always positive, that is process is endothermic. याद रहेंगी ये दोनों बातें Yes, ma'am. Yes, ma'am. बच्चों प्लीज कंफर्म कीजिए, याद रहेंगे 2 बातें, बिकॉज दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. एंड ये एग्जांपल, दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी. ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, ओके ओके. ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किलोजूल पर मोल और जूल पर मोल. ठीक है, ओके ओके. Now we are going to discuss factors affecting electron affinity or electron gain enthalpy. You can also say electron affinity or you can also say electron gain enthalpy. ठीक है बच्चों, ओके. तो first one is atomic size. ठीक है, atomic size. Can anyone explain how the electron gain enthalpy effective by the changing of size? कोई बता सकता है? Can you tell me? How atomic size depend on electron affinity? Yeah, how electron gain enthalpy changes when you move from left to right or top to bottom? Chika, you want to try beta? Ma'am, I'm thinking. Okay. Okay. Shikha is thinking. Harshida, Anushka, Aditya. No idea, ma'am. No idea? Okay, I'll tell you. Okay, then I'll explain. ठीक है, okay बच्चा. First factor is atomic size. Please tell me, top to bottom atomic sizes increase or decreases? बस इतना बता दो. Increases. Yeah. Increases. Okay, अगर मैं बात करूँ top to bottom atomic size increase. If size, why size increases? Because number of shells increases. Yes, ma'am. Size increases, ma'am, because number of shells increases. Number of shell increases. It means there is less force of attraction between nucleus and outermost shell electron or valence shell electron. Yes, Yes, ma'am. ma'am. If there is less attraction between nucleus and valence shell electron gain enthalpy or electron affinity decreases. Because affinity is what? Force of attraction. ठीक है, affinity is what? Attraction. ठीक है, clear हुआ? It means electron affinity, yeah, you can also say electron gain enthalpy is inversely proportional to atomic size. If size increase, electron gain enthalpy will decrease. First point, first factor clear. Has it clear बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Second effect is screening effect. You know ना screening effect?
If inner shell electron shield to outermost shell electron, then there is less force of attraction Less between force of attraction. valence shell electron. ठीक है? Okay. If screening effect is more, then electron gain enthalpy decreases. Tell me. अगर इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, इट मींस उन्होंने बहुत अच्छे से शील्ड किया हुआ है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को, देन इट बिकम लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इट मींस इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी डिक्रीजेस व्हेन द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज हाई. Yes, ma'am. ठीक है? टेक 10 seconds and think about it. Atomic size and screening effect. Electron affinity is inversely proportional to size, and screening effect is also inversely proportional to electron affinity. What about effective nuclear charge? Ma'am, effective nuclear charge is force of attraction. If force of attraction is more, then the electron affinity Is more. is more. Beta, mute yourself, Anushka. अनुष्का बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ. हाँ ठीक है. ओके, 3 फैक्टर क्लियर है. डी वाला फैक्टर क्या है? देखो, फोर्थ फैक्टर क्या है? इफ द कॉन्फ़िगरेशन इज हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, इफ द कॉन्फ़िगरेशन इज हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, या यू कैन से कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0, है ना. अगर फुल्ली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, इट इज नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, like nitrogen, like noble gas, है ना, like alkaline earth metal. देखिए, नोट करिए, this is your noble gas, है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, and this is your group second वाले elements, बेटा मांगे कार सेंट्रो याद करो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, and this is your 15th group elements, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक. देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन केस में 0 है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है. ठीक है? बोथ द टर्म्स यू कैन यूज साइमल्टेनियसली. आप कोई एक टर्म याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव इन केस ऑफ नोबल ग्रुप 18, ग्रुप सेकंड, एंड इन केस ऑफ ग्रुप 15, या यू कैन ऑल्सो से वेरी लेस. ठीक है? या तो पॉजिटिव होगी, नहीं तो कम होगी. क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ओके बच्चों. Okay, तो I have already told you ना, variation of electron gain enthalpy top to bottom और along the period बच्चों. ठीक है? top to bottom electron gain enthalpy decreases, right? Yes. Electron gain ma'am. enthalpy, yeah, you can also say electron gain enthalpy less negative. ठीक है? ध्यान रखना बच्चों, इफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव, इट मींस दैट पर्टिकुलर स्पीसीज इज विल बी हैप्पी व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऐड इनटू इट्स आउटर मोस्ट शेल. ठीक है? ध्यान रखना इस चीज का. एंड अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव. टेल मी बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव. ये जनरल है, दिस इज योर जनरल ट्रेंड, बट देयर आर सम एक्सेप्शन, बिकॉज इनऑर्गेनिक इज इनकम्प्लीट विदाउट एक्सेप्शंस. ठीक है? तो इन जनरल आप क्या बोलोगे? अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, इट मींस इट बिकम मोर नेगेटिव, एंड टॉप टू बॉटम as we move down the group electron gain enthalpy decreases, or you can say it become less negative. clear मेरे बच्चों? अगर clear तो give me thumbs up. thumbs up देते रहा करो, फिर मुझे लगता है कि भाई क्लास तो बोरिंग हो गई है. ठीक है? if you are able to understand then give me thumbs up. okay, great, बहुत बढ़िया. okay, now this is your most important table आज की क्लास के लिए, है ना. दिस इज योर एनसीईआरटी टेबल. ठीक है? आपके एनसीईआरटी में है ये. अब इसमें हमें क्या करना है बच्चों? एक्सेप्शन पे सर्कल मार्क करना है.
ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू हाईलाइट द एक्सेप्शंस एंड राइट इन अनदर स्लाइड. ठीक है, इसमें हम सारी एक्सेप्शंस लिखेंगे. आ जाओ. ओके बच्चों, लुक इनटू दिस टेबल फॉर नियोन. सबसे पहले नियोन पे देखेंगे बच्चा. For neon, electron gain enthalpy is plus 116. Can you notice that? Can you observe this value? Yes, ma'am. You don't memorize this value. ठीक है, this is all our experimental values. ठीक है, we have to understand only concept. ठीक है, why neon has positive electron gain enthalpy, है ना? Why fluorine has negative electron gain enthalpy? We have to understand only concepts, not experimental data. ठीक है, तो बच्चे for neon plus 116 क्या हुआ होगा? Because it is a fully filled बच्चों. Yes, ma'am. Okay, if it is fully filled, then it will not be happy if an electron added into its outermost shell. That is why neon के लिए plus 116. ठीक है, fluorine is most electronegative. It will be happy when an electron added into its outermost shell. That is why minus 328 है ना. And कितनी amount of energy release हुई है? Minus 328. More the negative value, more amount of energy will be released. Are you getting my point? ठीक है, ओके. तो बच्चा देखो, लेफ्ट टू राइट अभी मैंने बताया, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, इट मींस मोर नेगेटिव. तो देखिए, फॉर ऑक्सीजन minus 141 and fluorine minus 328, but for neon it's plus 116. होनी तो क्या चाहिए थी? नेगेटिव, बट है क्या? पॉजिटिव. इट मींस दिस इज एक्सेप्शन. दिस इज एक्सेप्शन. ठीक है, ओके. तो मैं यहाँ पे लिख दूं बच्चों, नियोन की सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सबसे पीछे रख दूं इसको. फॉर सेकेंड पीरियड बच्चों प्लीज टेल मी, बताइए, टेल मी बच्चों कि क्या मैं नियोन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे पीछे रख दूं इन केस ऑफ सेकेंड पीरियड? क्यों? बिकॉज पॉजिटिव है ना. पॉजिटिव हमें सबसे आगे कौन सी रखनी है? जिनकी मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है. ठीक है, ओके. उसके बाद देखिए बच्चों, नाइट्रोजन, इन केस ऑफ नाइट्रोजन वैल्यू इज plus 31 and in case of beryllium plus 66 because nitrogen is half filled 2p3 and in beryllium it's 1s2 2s2. बच्चों ये भी खुश नहीं होंगे when an electron add into its outermost shell. बताइए. Yes. तो नियोन के बाद कौन आ जाएगा? बेरिलियम. बेरिलियम के बाद क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन. बताइए, क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, देन सेम चलेगा. लिथियम, देन बोरोन, then carbon, then oxygen, then fluorine. Is this correct? Is this correct? Is this correct trend for second period? Think about it. Think about it. Yes, ma'am, आपने लिखा है तो सही होगा. ऐसा है क्या? ठीक है, देखो बच्चे, एक्चुअली ना दिस इज इनकरेक्ट. Why this is incorrect? इवन एनसीईआरटी ने भी सही से नहीं लिखा हुआ. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू. बच्चों, इन केस ऑफ लिथियम द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s1. ठीक है, Yes, ma'am. lithium 1s2 2s1. When an electron added into its outermost shell, that is in 2s1, it become Li negative 1s2 2s2 है ना. It means energy is released in this case even more than the boron, because boron has 1s2 2s2 2p1. When an electron added into 2p1, it become 2p2. तो बच्चे यहाँ पे आप प्लीज चेंज करिए. यहाँ पे पहले तो क्या आ जाएगा? लिथियम. एक सेकेंड, देन बोरोन. देखिए बच्चों, now this is correct. Now this is correct. Are you getting my point? बताइए. एक बार और एक्सप्लेन करूं? Shall I repeat? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. I repeat. बच्चों, in case of neon, beryllium, nitrogen, the value of electron gain enthalpy is positive. ठीक है, इसलिए हमने इसको कहाँ रख दिया? पीछे की साइड रख दिया. ठीक है. While in case of boron and lithium,
लिथियम कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 ठीक है. जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, when an electron add into 2s1 it become 2s2, it becomes stable, then the energy will release in case of lithium. More energy will be released in case of lithium as compared to boron. That is why lithium become, lithium क्या हो गया यहाँ पे पहले आ गया बोरोन से भी. क्लियर है बच्चों? इज इट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके ठीक है. एक्सेप्शन आती है अब, तो यहाँ पे मैं एक्सेप्शन लिखूंगी बच्चे फॉर group 17. Group 17 members are, tell me, group 17 elements are Halogen. halogens: fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, fluorine, chlorine, bromine, iodine. बच्चे, according to our general trend, electron down the group electron gain enthalpy become less negative. तो जो इसका ट्रेंड होना चाहिए, it should be fluorine, chlorine, bromine, iodine, right? Expected order of electron gain enthalpy should be this: fluorine की सबसे ज्यादा, chlorine, then bromine, then iodine. But in actual the trend is chlorine, fluorine, bromine, iodine. But in actual the trend is chlorine, fluorine, bromine, then iodine. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? Can anyone explain? ऐसा क्यों हुआ बच्चों? This is most Ma'am, important. because chlorine has 3p5 configuration, ma'am. Yeah, very good. After adding one electron, it becomes more stable and gives more energy. Gives more energy, more energy will be released. ठीक more है. Aditya is saying right, but I want to add some points here. In case of chlorine, बच्चे, chlorine has 3p orbital, right? And while in case of fluorine, it has 2p orbital. 2p has smaller in size as compared to बच्चा 3p. ठीक है. So when an electron add into fluorine, क्या होगा? वो कहाँ पे add होगा? In 2p. While in case of chlorine, electron add into in 3p. And you know बच्चे, fluorine has smaller in size as compared to chlorine. So when an electron add into a 2p subshell, electron face repulsion due to compact size of fluorine. While in case of chlorine, when an electron add into in 3p shell, it will not face and repulsion. बताइए, it will not face repulsion in 3p. Tell me, because Yes, ma'am. 3p has larger in size as compared to 2p. Fluorine has smaller in size. Fluorine बहुत छोटू सा है, तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्शन होगी. ठीक है. जबकि in case of chlorine, 3p has larger in size. ठीक है. When electron add into 3p, it can easily accommodate in 3p as compared to fluorine. So this is the reason why chlorine has high electron gain enthalpy. Why chlorine has more negative value as compared to fluorine. Clear है? It means in a periodic table, question can be asked, in periodic table, सबसे ज़्यादा, which one has highest electron gain enthalpy? Then your answer would be chlorine. Chlorine has highest electron gain enthalpy. Chlorine has highest electron gain enthalpy in periodic table. Are you getting my point, बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. तो don't be confused कि fluorine is more negative, then it will be happy when an electron add into its 2p. नहीं. That is different thing, electronegativity. ठीक है. I will also cover electronegativity in this class. But फिलहाल के लिए we are discussing electron gain enthalpy. ठीक है. Clear है? Okay. In case of group 15 और group 14, इसमें ये जो एक्सेप्शन है वो सेम रहेगी, सेम फॉर ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15. ठीक है. ग्रुप 14 क्या होगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Kashi, Shiv Parvati. हाँ, काशी गए शिव पार्वती. एंड इन केस ऑफ ग्रुप 15, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी. Antimony. ओके. इसका एक वो बताया था, निमोनिक्स बताया था. क्या बताया था? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार. हाँ, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार. ठीक है. इन दिस केस वही फॉस्फोरस इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, मतलब फॉस्फोरस हैज हाई इलेक्ट्रॉन gain enthalpy एज कंपेयर टू नाइट्रोजन. एंड इन ग्रुप 14 सिलिकॉन हैज हाई इलेक्ट्रॉन gain enthalpy एज कंपेयर टू कार्बन. क्लियर है?
ठीक है, Yes, ma'am. तो मैं यहाँ पे लिख दूं, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन ग्रुप 14 सिलिकॉन, देन कार्बन, जर्मेनियम, टिन, लेड, राइट। while in case of group 15 कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ बच्चों, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हो, एलिमेंट्स ऑफ, लिखो बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड हैज हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सेकेंडरी पीरियड एलिमेंट्स। बच्चों आगे लिख लो, मेरे पास स्पेस नहीं है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, क्लियर है? रीजन विल रिमेन सेम, क्योंकि थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स दे हैव 3 p ऑर्बिटल। ठीक है, इट कैन इजिली अकोमोडेट एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चे, लेकिन ग्रुप 16, प्लीज mark this as very 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 important. Group 16, oh sir, see the problem, याद है? See the तेरा problem. Yes, ma'am. Oh sir, हाँ, see the problem. In this case बच्चों, in this case the order will be sulfur, then selenium, then tellurium, then polonium, and in last oxygen is there. This is so important. Students are always confused कि सल्फर के बाद ऑक्सीजन आएगा, बट इन एक्चुअल ऑक्सीजन क्या है, सबसे पीछे जाएगा। इसका रीजन क्या बोलोगे? इसका रीजन यू कैन से कि ऑक्सीजन हैज स्मॉलर इन साइज, मतलब सबसे छोटा है, ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज ऑफ ऑक्सीजन सबसे पीछे इसलिए आया है, क्योंकि इस केस में क्या होगी, मोर रिपल्शन होगी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऐड इनटू इट्स आउटर मोस्ट शेल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ग्रुप 17, ग्रुप 14, ग्रुप 13 एंड आपका जो ग्रुप 13 है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, वो भी सेम रहेगा एज दैट ऑफ ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15। ठीक है, बट इन केस ऑफ ग्रुप 16 प्लीज इसको ध्यान रखना कि ऑक्सीजन जो है कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन विल कम टू द लास्ट। ओके जी, क्लियर है? ग्रुप 15, ग्रुप 14, ग्रुप 17, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 13, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लिख लीजिए। ठीक है, ओके, दिस इज योर ऑल एक्सेप्शंस, दिस इज फॉर योर नोट्स बच्चों, दिस इज फॉर योर नोट्स। ठीक है, ओके, crack the PYQ. First question is electron gain enthalpy with negative sign of fluorine is less than that of chlorine is due to. Please raise your hand if you know the answer. Take 10 seconds. Yes बच्चों, आपको आता है, please try to solve this question. This is your PYQ. Try to solve बच्चे. I will extend this class, ठीक है, for 15 minutes. Try to solve this question. Okay, Harshita. Okay, Harshita raised her hand. Okay, Mantasha, very good. Om, Shabash, Aditya, Rupali, very good बच्चों. Anushka, you want to try बेटा? अनुष्का, ये आर्ट वर्क एडवर्टाइजिंग, अरे भाई नाम तो लिख दो अपना। संजय, शिखा, विजय कुमारी, मिशबा, महराज, रूपाली, बच्चों ट्राई करो। ओम, यस बेटा, ओम, यस बेटा, टेल मी द आंसर। Fourth option, ma'am. Fourth option, electron gain enthalpy with negative sign. Okay, Harshita, according to you? Fourth option, ma'am. Fourth option. Anushka, you want to try? Which one is correct? Ma'am, fourth. Yeah, fourth. तो Fourth बोलो option, ना, ma'am. be confident about your answer. Yes, अभी तो समझाया मैम आपने. Due to smaller size of fluorine या due to compact size of fluorine, electron gain enthalpy with negative sign of fluorine is less than that of chlorine. Most important question. ठीक है, ये एग्जामिनर्स का ना फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो वो बहुत डालते हैं एग्जाम में। ठीक है, ओके, डू दिस क्वेश्चन, assertion and reason बच्चों। Fluorine atom has a less negative electron gain enthalpy than chlorine atom. Reason is additional electron is repelled more efficiently by
3p electron in chlorine atom than by 2p electron in fluorine atom. I'll give you 10 seconds to solve this question. जल्दी करो, do it fast. ट्राई बच्चों. हर्षिता हो गया आपका? Ma'am, 1 minute, Okay. Don't take 1 minute. Take please 10 to 15 30 seconds. seconds. ठीक है. नहीं, इतना नहीं लेना है. 30 seconds. Okay. Devisha, Rupali, sorry, Rupali. You want to try? Ma'am, second option. Second option. Okay, she is saying statement 1 is true. Statement 2 is also true, but statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Anushka, tell me beta. Anushka. Shikha. Ma'am, I'm not sure, but one option A maybe. Option A B. Okay. Okay, इसके अलावा किसी का Option A. ऑप्शन है? A और B के अलावा मिशबा? Ma'am, I guess C it's option. option A. A. Okay, C option किसने बोला? C option? Moment. Okay, Om. ठीक है, you are saying C. तो yes, ma'am. ओके. बच्चे प्लीज देखो इधर, रीजन इज फॉल्स ना. वो कह रहे हैं, दे आर सेइंग कि एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड मोर एफिशिएंटली बाय 3p. ये तो स्टेटमेंट, ये तो रीजन ही गलत है ना बच्चों. रीजन इज फॉल्स. ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इट शुड बी बाय 2p इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इन फ्लोरीन. अभी बताया ना मैंने, फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से इट फेस रिपल्शन ना, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऐड इनटू इट्स आउटर मोस्ट शेल, दैट इज 2p. 3p में थोड़ी ना वो रिपल्शन फेस करता है. तो रीजन इज फॉल्स बच्चों, एंड असर्शन इज ट्रू. क्लियर है अभी? Yes, ma'am. पक्का गलत तो नहीं कर? ओके. कुछ कहना है मिशबा? नो मैम. ओके, दिस इज योर होमवर्क बच्चों. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. ठीक है, आपको क्या करना है? द एलिमेंट्स अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. ठीक है, ओके. कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन बच्चों? दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. द क्वेश्चन जो लीव कर रही हूं मैं, वो आपके होमवर्क में जाएगा. ठीक है, okay. The electron enthalpy of fluorine, chlorine, bromine and iodine respectively, this is also your PYQ. ठीक है, टेल मी बच्चों. यस, अनुषा टेल मी बेटा. Just a यस, अनुषा. बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी करना है ना? यस मंतशा. नम्रता इज सेइंग ए. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? A, ma'am. Option A, ma'am. ठीक है, ए को जिन बच्चों ने वोट किया है प्लीज राइट इन चैट बॉक्स. मैम ए ए ए ए ए प्लीज राइट इन चैट बॉक्स इफ योर आंसर इज ए. यस, ए इज करेक्ट. ठीक है, बेटा एक्चुअली ना assertion reason type questions a little bit confusing, but don't be confused. If your concept is clear na, then you will be able to do that type of question, assertion and reason, because in NEET assertion और reason वाले भी questions आते हैं. ठीक है, ये वाले तो आपने बिल्कुल ठीक कर लिया, क्योंकि अभी मैंने बताया था क्लोरीन, फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. ठीक है गायत्री, तो क्लोरीन हैज हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी. तो आपको वैल्यूज नहीं लर्न करनी थी, राइट? अगर आपको, इफ यू नो द कंसेप्ट, आप ये कर लोगे क्वेश्चन. ठीक है, ओके. प्लीज डू दिस क्वेश्चन, प्लीज डू फास्ट बच्चों. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पीज, फटाफट, जल्दी से. शाबाश. Aditya raised his hand. Anushka also raised her hand. Shabash.
मिशबा ऑल्सो वेरी गुड. ओके, अरे क्या बात है, काफी बच्चों ने हैंड रेज कर लिया भाई. आर्ट वर्क एडवर्टाइजिंग, पहले तो बच्चे प्लीज टेल मी योर नेम. आर्ट वर्क एडवर्टाइजिंग इज फॉर मी इट्स कॉम्प्लिकेटेड नेम ना. मैम सना. सना, ओके सना. एक्चुअली हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो रहे थे हम, तो पापा के इसमें से करना पड़ा. अच्छा चलो ठीक है बेटा. ओके हाँ बच्चों बताओ जल्दी, जिसका जो आंसर है चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट से. राइट इन चैट बॉक्स. वेरी गुड. अरे शाबाश. इट मीन्स मेरे बच्चे क्लास में अटेंशन से बैठे हैं. ठीक है, वेरी गुड बच्चों. इट मीन्स आप लोगों ने मेरे लेक्चर को बहुत ही आराम से सुना है. ठीक है, और दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. देन वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी सिंपल. ठीक है, तो बच्चों प्लीज अंडरस्टैंड द, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जस्ट द टेंडेंसी ऑफ एन एटम. ठीक है, टेंडेंसी बोल दो, कैपेबिलिटी बोल दो. टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. if you have a molecule AB. ठीक है, if you have molecule AB. ठीक है, okay, this is your sigma bond. ठीक है, this bond कैसे बना है ये bond? By sharing of electron बच्चों. ठीक है, if let us assume B is more stronger than A, like in this picture. ठीक है, B is more stronger. ठीक है, B क्या कर रहा है, जोर से लगा रहा है और बेचारा क्या है, दुखी है ना. क्या दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है. If let's just say B is more stronger than A, then it attract the electron pair towards itself बच्चों. If B is more powerful than A, then it attract the shared pair electron towards itself. Right now? Yes, ma'am. जैसे in this picture जो B वाला एटम है is more powerful than atom A. ठीक है, आपको पता है ना सिग्मा जो ये बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है. नहीं पता तो प्लीज ध्यान से सुनना. सिग्मा बॉन्ड, दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड. हालांकि आई विल डिस्कस इन केमिकल बॉन्डिंग हाउ टू फॉर्म सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, बट आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने अपने स्कूल में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पढ़ा होगा. ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. तो अगर एक बंदा बहुत पावरफुल है तो वो ही क्या करेगा, अपने ऊपर अपने खींचेगा. आपने वो वाला गेम खेला वो रोप वाला, जैसे ये देखो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना. ये 2 बंदे क्या कर रहे हैं, कोशिश तो ट्राई तो दोनों ही कर रहे हैं है ना पुल करने की, लेकिन जीतेगा कौन, बी वाला, बिकॉज बी इज मोर पावरफुल देन इट. ठीक है, इट हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो ये बेचारा दुखी है, कहता जा भाई तू ले जा, तू ले जा, तू ले जा. ठीक है, इट मीन्स. ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, हम क्या बोलेंगे कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए. ठीक है, if it attract the shared pair of electron towards itself, then it become partial, it acquire partial negative charge and it acquire partially positive charge. Delta represent partial बच्चों. ठीक है, there is no complete positive or this is not complete positive or negative charge, this is partial charges developed on A and B. ठीक है, due to attraction. ठीक है, क्लियर है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट, कौन बताएगा, प्लीज टेल मी द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. टेल मी बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होगी, टेल मी. यस मिशबा, प्लीज ट्राई टू डिफाइन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? यस अनुषा. The qualitative measure for the ability of an atom of a chemical to bond to attract shared electron is called electronegativity. Tendency of an atom in a molecule to attract shared pair of electron towards itself. If one atom is more powerful, then it becomes more electronegative, and another one is less electronegative. If one atom is more electronegative, then it acquire partially negative charge. Negative charge क्यों? Because electron is negatively charged, right? तो अगर इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाएंगे it become negatively charged ना बच्चों, और जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो it become positively charged ना. But this is not complete positive. This is your partial charges. ठीक है, which develop on A and B due to attraction.
ठीक है जी, ओके जी, ठीक है, यस मैम। ma'am. ओके। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन विच द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स? तो फर्स्ट आर फैक्टर इज साइज, ठीक है। कैन एनीवन टेल मी हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिपेंड ऑन साइज बच्चों? कैन एनीवन टेल मी कि हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिपेंड ऑन साइज, या how size will depend on electronegativity? If size is small, then electronegativity will be The size of an atom is determined by the distribution of electrons around its nucleus. ये तो तुमने एनसीईआरटी वाली लाइन बोल दी ना। मेरे को सिंपल लैंग्वेज में बताओ, if size increases then electronegativity will be decreases or increases? Decreases. Okay, Decreases. देखो बच्चों, अगर साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, इफ आई मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन साइज विल इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, एंड साइज विल इंक्रीज, इट मींस देयर इज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्यार मोहब्बत कम है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अगर प्यार मोहब्बत कम है देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी लेस, Decrease. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डिक्रीजेस। इट मींस साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इट मींस यहां पे लिख दो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस बच्चों, Yes, ma'am. because effective nuclear charge increases or size decreases, electronegativity increases. If I am talking about top to bottom, top to bottom, electronegativity decreases, Yes ma'am. बस खत्म, electronegativity decreases. Second factor is effective nuclear charge, and हमें पता है, we know effective nuclear charge is what? Force of attraction, and force of attraction become high between क्या बोलते हैं, valence electron and nucleus, then electronegativity will be high. तो Z effective is directly proportional to electronegativity बच्चों। अगर effective nuclear charge बढ़ेगा तो electronegativity भी बढ़ेगी। Please tell me, Yes, ma'am. clear? बस Yes ma'am. these are the two factors on which electronegativity depends, ठीक है। ये मैंने बता दिया, इन अ पीरियड क्या होगा, इन अ ग्रुप क्या होगा, ओके। तो अगर आपसे कोई पूछे बच्चे इन पीरियोडिक टेबल which element is most electronegative, तो your answer is fluorine, your answer is fluorine, then oxygen, then nitrogen। आप इसको फोन से याद रख सकते हैं, फोन। आई नो स्पेलिंग ऑफ फोन इज PHONE, बट हम ऐसे याद रखेंगे फोन, ठीक है, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन मेरे बच्चों, ठीक है। दिस इज योर एनसीईआरटी टेबल, दिस इज योर एनसीईआरटी टेबल। बच्चे क्या होता है ना, समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चे आपको क्या करना है, डू वन थिंग, प्लीज मेमोराइज द वैल्यू ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन की याद रखो 4 होती है, बाकी मैं याद करा दूंगी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज 4.0, 4 होती है। देन ऑक्सीजन 3.5, 0.5 कम कर दो। फॉर नाइट्रोजन इट विल बी 3, फॉर कार्बन 2.5, फॉर बोरोन 2.0, फॉर बेरिलियम इट्स 1.5 एंड फॉर लिथियम इट्स 1.0। क्लियर है? करते जाओगे, 0.5 कम करना है, राइट? देखो बच्चों, 0.5 बस तुम्हें कम करना है, ओके, ठीक है। Remember, nitrogen and chlorine almost has same electronegativity. According to NCERT, it is same 3.0, but in actual chlorine has little bit more electronegativity. But हम जो है NCERT के अकॉर्डिंग चलेंगे, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको कैसे याद रखेंगे? नक्कल से याद रखोगे इसको, नक्कल से, ठीक है। जिसको ऐसा हिंदी में ट्रिक्स बनाना आता है तो आप वैसे कर सकते हैं। आई नो यहाँ पे मोस्टली जो है नो द लैंग्वेज एक्सेप्ट गायत्री, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नकल से। गायत्री, इट्स क्लियर? नकल, N इज मतलब नाइट्रोजन एंड क्लोरीन हैज सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, ठीक है। और ऐसे ही HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिमाचल प्रदेश, कुछ भी याद रखना है रख देना कि हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस हैज
सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट्स 2.1. इतना कर सकते हो याद? Okay, ma'am. गायत्री सो क्यूट. Ma'am. ठीक है, रख सकते हो इतना याद. ओके, नेक्स्ट इज बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक करेक्टर. हैव यू हर्ड दिस टर्म, मेटेलिक करेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन योर 10th क्लास Yes, ma'am. grade? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक करेक्टर. ठीक है, दिस इज जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक करेक्टर, यू कैन से the tendency of an atom of an element to lose electrons and form positive ion is known as electropositive. In a more electropositive element has a more metallic character. ठीक है, if I am talking about group first elements, if I am talking about बच्चे सर ने ना एक गूगल फॉर्म फ्लोट किया इन चैट बॉक्स. प्लीज मार्क योर अटेंडेंस. ठीक है, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस. एक बार अपने अटेंडेंस मार्क कर दो, देन आप जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस करेंगे. ठीक है, ठीक है. ओके, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज व्हाट? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप फर्स्ट. ग्रुप फर्स्ट बच्चे, लीना ने की रब से फरियाद. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, cesium, right? You know very well valence shell electron in case of group first is 1. देखो बच्चों, ठीक है, पहले आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए. प्लीज मार्क योर अटेंडेंस. And give me please thumbs up if you mark the attendance. Give me thumbs up if you marked your attendance, beta. अनुष्का ने कर दिया है. ओके, नम्रता ने कर दिया. शिका. ओके, बाकी स्टूडेंट्स भी करेंगे. ठीक है, क्लियर है ना? ये आप लोगों को पता है कि इन लिथियम इन ग्रुप फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 होते हैं. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर? 1. ठीक है, ओके. When we move down the group, please tell me the size increase or decrease. Size increases. Increase. ठीक है, size increases, it means there is less force of attraction between nucleus and valence shell electron. Then we can easily remove one electron from its outer shell. ठीक है, Yes. if any atom has a high tendency in order to lose its electron, then there will be high electropositivity. ठीक है, it means जितनी जल्दी एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, उतनी जल्दी उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. और जितनी जल्दी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इट मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विल हाई और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन इट मींस ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल हैज हायर मेटेलिक कैरेक्टर. बताइए, हायर मेटेलिक कैरेक्टर होगा? टेल मी. ओके, तो बच्चे दो चीजें हैं इन अ पीरियड. प्लीज ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी केयरफुली. व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस. ठीक है, एटम कैन इजिली लूज इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एंड इन पीरियड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. दीज 2 पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके बच्चों, ये देखिए बच्चों, I have already told you ना all concepts. देखिए, मेटेलिक करेक्टर, एटॉमिक रेडियस, है ना. नॉन मेटेलिक करेक्टर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्लीज गिव मी थम्स अप इफ यू मार्क योर अटेंडेंस बच्चों, बिकॉज अटेंडेंस किसी की रह गई. इफ योर अटेंडेंस विल बी नॉट 90%, then you will not get any benefits like pen tablet or study material. Please make sure your attendance should be marked बच्चों. ठीक है, नॉन मेटेलिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या एक काम करो ऐसे लिखो, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, नॉन मेटेलिक इज व्हाट? टेंडेंसी ऑफ गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो वही था. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज व्हाट? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट
shared pair of electron. Non-metallic is what? Tendency of an atom to gain an electron. ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीज, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आल्सो डिक्रीज. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज. आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज. मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम, टेल मी मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम increase, left to right decrease, okay. Atomic radius top to bottom increase, left to right decrease. बहुत बढ़िया, खत्म चैप्टर बस. ठीक है, तो बच्चे ये जो मैंने अभी बोला दिस इज जनरल ट्रेंड, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. आपको क्या करना है, यू हैव टू read your NCERT, mark all the highlights, mark all the exceptions जो भी हमने क्लास में पढ़े हैं. Also do your in-text and NCERT back exercise question, बहुत ज्यादा important है. Do your in-text and back exercise question, बहुत ज्यादा important है. ठीक है, और उसके बाद जो मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन दिए है ना, वो आप लोगों को ट्राई करते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन करोगे, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, फिर आगे चलते हैं. प्लीज डू दिस क्वेश्चन. छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया है. द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू फोल्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. प्लीज डोंट लीव द क्लास बेटा, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर बाय टुडे इटसेल्फ. ठीक है, प्लीज डोंट लीव द क्लास. ठीक है, आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर विद आई नीड 10 to 15 minutes. ठीक है, प्लीज डू दिस क्वेश्चन. Rest of the question will be your homework. Okay, the correct option with respect to the folding electronegativity values of the element. Please tell me the answer. It's okay, Shikha. You can watch recorded lecture. Okay. Om is saying A is the correct answer. Anushka? Yes, ma'am. A is the correct option. Yes, A is correct. Germanium has high electronegativity value. बेटा periodic table ये सिर्फ यहाँ पे reference के लिए है. This is only for your reference. ठीक है, in exam no periodic table will be given to you. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना. Okay. बच्चों generally ना students are confused between electronegativity and electron affinity. ठीक है, they sometimes assume that both are same. Electronegativity and electron affinity, but both are different terms. Electronegativity is not any type of energy, while our electron affinity or electron enthalpy is energy. First point. ठीक है, there is no unit of electronegativity, but electron affinity has some unit, है ना, kilojoule per mole और joule per mole. ठीक है, electronegativity is a property of a bonded atom of an sorry क्या बोल दिया मैंने, हाँ, electronegativity is a property of bonded atom, not an isolated gaseous atom, so no energy will be liberated or absorbed. In case of electron enthalpy, electron added into its outermost shell, ठीक है, energy will be released. But in case of electronegativity attract the shared pair of electron to both itself. ठीक है, in case of electron gain enthalpy, we have talk about isolated gaseous atom, but in electronegativity हमने किसके बारे में बात की, मॉलिक्यूल के बारे में बात की. क्लियर है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ओके, देयर आर 3 स्केल जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर की थी, पॉलिंग, मलिकन, एल्वेड, रोशो. ठीक है, डोंट नीड टू लर्न दिस ऑल. Pauling is a more appropriate scale as compared to Mulliken and Elved Roche scale. ठीक है, okay, this is the difference between electron affinity, electronegativity. This is for your notes. Please change this electrons. This is electrons, not elections. ठीक है मेरे बच्चों? Yes, ma'am. Okay, and okay. तो बच्चों ये है, I have already told you electron gain enthalpy in periodic table, which one has high electron gain enthalpy or high electron affinity? Answer is chlorine. But electronegativity किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की ज्यादा होती है as compared to chlorine. तो don't be confused between electronegativity and electron affinity. For noble gas, electronegativity is 0. समझ पा रहे हो? For noble gas, electronegativity is 0.
ठीक है, बिकॉज नोबल गैस को कोई इंटरेस्ट नहीं है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का या लूज करने का, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑलवेज जीरो। सीजियम और फ्रोंशियम के केस में जो होती है सेम होती है, सिर्फ ये रीड कर लेना, जस्ट रीड दिस, ठीक है, जस्ट रीड दिस, नथिंग एल्स, ठीक है। वैलेंसी इज व्हाट, वैलेंसी इज व्हाट, प्लीज टेल मी व्हाट इज वैलेंसी। ये आप लोगों ने अपना 10th क्लास में पढ़ा होगा। गायत्री, हैव यू हर्ड दिस टर्म वैलेंसी? वैलेंसी? नो मैम। ओके, वैलेंसी इज व्हाट बच्चे? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, combining capacity of elements. Okay, let's take an example. Group 1, Group 2, Group 13, 14, 15, 16, 17, 18. बच्चों वैलेंसी ना प्लीज लिखिए यहाँ पे, राइट इन योर नोटबुक, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 8 minus number of valence electron. Are you getting my point? Please write it in your notebook. ठीक है, लिख लिया, वैलेंसी इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 minus नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, जैसे बच्चों इन केस ऑफ ग्रुप फर्स्ट, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर? 1। तो वैलेंसी इज 1, ठीक है मेरे बच्चों, वैलेंसी इज 1। इन ग्रुप 2 हाउ मेनी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2। शाबाश, तो वैलेंसी इज 2। इन ग्रुप 13 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3, तो आपका जो वैलेंसी हो जाएगा इज 3, ठीक है। इन केस ऑफ ग्रुप 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4, तो वैलेंसी इज 4, ठीक है। यानी कि फ्रॉम ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 एंड 14, प्लीज ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी केयरफुली, फॉर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14 वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। एंड इन केस ऑफ 15, 16, 17 इट्स valency is 8 minus number of valence electron. How many valence electron in group 15? 5. NS2NP3. Do you remember? NS2NP3. There is 5. There are 5 valence electron. The valencies, then valency become 3. 5 minus 3. Oh, sorry, 8 minus 5. Valency will be 3. Clear? In group 16, there are 6 valence electron. मैं यहां पे लिख देती हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6, देन द वैलेंसी 2, yes. And in group 17 it's so simple. Group 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7. फ्लोरीन याद करो, फ्लोरीन NS2NP5 याद करो, 1s2 2s2 2p5, there are 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। then वैलेंसी will be 8 minus 7 is 1. And for group 18 valence electron is 8, and for group 18 valence is 0. It means the combining capacity of group 18 element is 0. It means no more other element is going to combine with group 18, ठीक है। इसलिए क्या रहना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं भाई, हमारे साथ कोई ना हो, ये किसी के साथ दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, ठीक है, वेरिएशन इन पीरियड, ठीक है। डाउन द ग्रुप फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 हैव वैलेंसी इक्वल टू 1, फॉर एंड दोस ऑफ ग्रुप 2 हैव वैलेंसी इक्वल टू 2। बच्चों व्हाट अबाउट केमिकल रिएक्टिविटी? रिएक्टिविटी, व्हाट इज रिएक्टिविटी? बच्चों रिएक्टिविटी कैसे बताओगे? देयर इज, ऐसे बोलोगे, देयर इज हाई केमिकल रिएक्टिविटी एट द 2 extreme and lowest in the center. Okay, I'll explain. If I'm talking about the element which are present in extreme left, like alkali metals and alkaline earth metals, ठीक है। In case of alkaline metal, it has high tendency to lose 1 electron, and in case of halogen, they are having high tendency to accept 1 electron. Are you getting my point? In case of electron metal, they are having high tendency. They have high tendency to lose 1 electron, because after the losing of 1 electron, it become stable gas configuration. And in case of halogen, if they accept an electron, then it become noble gas configuration. It means high reactivity at the 2 extremes. High alkali metals and halogens are most reactive. Are you getting my point? Yes, ma'am. ठीक है, ओके।
कैन यू डू दिस क्वेश्चन बच्चों? मेरे लिए बस एक क्वेश्चन कर दो, बस I need 10 minutes more. Please do this question. Ionization first and second ionization energy of few elements have been given below. Ionization first and ionization energy second. ठीक है? These 4 values are given to you. Which one is reactive? Second one is reactive non-metal. Third one is inert gas. Inert gas is noble gas. Inert मतलब least reactivity. A metal that form a stable binary halide of formula. ये आपको बताना है. Bachcho, I need only 10 minutes. Please don't leave the class. Can anyone try? बताइए. Anyone wants to try? Which one is most reactive metal? Which one is reactive non-metal? Yes. Mantasha, please tell me, beta, which one is reactive metal? Yes, beta, which one is reactive metal? Ma'am, I'm thinking. Okay. You raised her hand, na? That is why I'm asking. Anushka is saying A. Om is saying A. Baki bacche? Sana is saying A. Yeah. A is alkali metals. I told you. The क्या बोला था मैंने? I told you in my previous lecture. First, and there is large gap between, huge difference between first and second ionization energy in case of alkali metals. और alkali metals क्या होंगे? More reactive होंगे. तो answer is A. Which is reactive non-metal बच्चों? Non-metal. Non-metal बताओ. ये वाला होगा नॉन मेटल. ये देखिए, क्योंकि नोबल, देखो बच्चों हमें पता है, वी नो ना कि नोबल गैस हैज हाई वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. देन सी इज द आंसर फॉर थर्ड वाली स्टेटमेंट 2370, which is inert gas. C option is correct, है ना? Because this is the only one in which first ionization energy is very high. It means C belongs to noble gas. ठीक है? और नॉन मेटल क्या हो जाएगा फिर? D हो जाएगा. एंड फोर्थ का क्या हो जाएगा? अ मेटल दैट फॉर्म अ स्टेबल बाइनरी हैलाइड. बाइनरी हैलाइड का मतलब क्या है? आप लोग 9th में फॉर्मूला सीखते थे, AX2. ठीक है? इट मींस A has valency of 1 and X has a valency of 2. क्रिस क्रॉस करते थे AX2. एक मिनट, सॉरी मैंने गलत लिख दिया. ठीक है? देन आप क्रिस क्रॉस करते थे. इट मींस A has valency of 2. इट मींस इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2. हाँ या ना? सोचो एक बार, थिंक अबाउट इट. स्टेबल बाइनरी हैलाइड बनाया ना, AX2 कैसे आया होगा बच्चों? A हैज वैलेंसी ऑफ 2, ठीक है, एंड X हैज वैलेंसी ऑफ 1. X की वैलेंसी 1 रही होगी और A की 2 रही होगी. अगर वैलेंसी 2 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2 ही होंगे. 2. तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इट मींस A बिलोंग्स टू एल्कलाइन अर्थ मेटल. और एल्कलाइन अर्थ मेटल में मैं आपको एक पॉइंट याद करवा देती हूँ. इन केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलमोस्ट डबल, 900 and 1760. ठीक है? ध्यान रखना. फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल लिख लो कहीं पे, प्लीज राइट इन योर नोटबुक. फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलमोस्ट डबल. क्लियर है? देन आंसर इज डी. ठीक है? दिस इज योर होमवर्क बच्चों. ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ के बताएंगे मुझे? क्या लिखा हुआ है ये हर्षदा? All elements are reacted with oxygen. नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? रट लो. यानी कि पिरामिड. याद कर लो. है ना? रट लो. तो कैसे रटना है इनको? सबसे पहले बच्चों पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच वन हैज न्यूट्रल ऑक्साइड. ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. तो वी हैव टू मेमोराइज दिस इफ यू वांट टू स्कोर 4 मार्क्स. ठीक है? तो कैसे रटेंगे इसको?
न्यूट्रल ऑक्साइड्स को ऐसे रटेंगे बच्चे, नो को नाश हुआ, नो को नाश हुआ, नो को नाश हुआ, ऐसे ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है ना। नो मतलब NO, ठीक है, और को मतलब कोबाल्ट, नाश यानी बच्चे NO2 N2O नाइट्रस ऑक्साइड, हुआ यानी कि वाटर। प्लीज मेमोराइज दिस, डायरेक्ट आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन, प्लीज मेमोराइज दिस। नो को नाश हुआ, न्यूट्रल ऑक्साइड्स आर NO, CO, N2 एंड H2O, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट एम्फोटेरिक ऑक्साइड, प्लीज इसको याद करो जनाबे, प्लीज इसको याद करो। अगर किसी को हिंदी में नहीं याद होता वो फिर उसको ऐसे ही रटना पड़ेगा, ठीक है। जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, लिखो बच्चों, प्लीज राइट दिस ट्रिक इन योर नोटबुक, पंजाबी सॉन्ग। जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। Gayatri, if you don't understand this trick, you have to memorize just like that, ठीक है। ओके, जनाबे इज बच्चों, जनाबे इज योर जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अली इज योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, राइट बच्चों। गाया यानी कि गैलियम ऑक्साइड, यहाँ पे है नहीं, मैं लिख देती हूँ, गैलियम ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। बेकार बेरिलियम ऑक्साइड, कार मतलब क्रोमियम ऑक्साइड, प्लीज मेंशन ओवर देयर, ठीक है। पंजाबी यानी कि लेड ऑक्साइड और PbO2। सोंग माने कि टिन का ऑक्साइड और एंटीमनी ऑक्साइड। रट सकते हो, कैन यू क्रैम इट बाय डूइंग Yes, दिस। ma'am. यहाँ पे अली ने गाया बेकार पंजाबी Yes, सॉन्ग, ma'am. वो नाश हुआ। These all are neutral oxide, these all are amphoteric oxide. Super duper important question, ठीक है। Okay, okay, do this question. Do this question. Which one of the following is amphoteric in character? Which of the following oxide is amphoteric in character? Tell me, tell me. Very good, Option शाबाश। first. अरे हाँ, अभी बताया ना, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, ठीक है। यस, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है एंड दिस इज योर होमवर्क, प्लीज टेक इट सीरियसली। फर्स्ट यू हैव टू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर NCERT. इफ यू हैव ऑलरेडी डन, then please do in text question as well as NCERT back exercise question, and don't forget to attempt NEET PYQs, very important, ठीक है। तो this is all your homework and देखो, ठीक है। and in next lecture we will start chemical bonding, ठीक है। तो basically I'll summarize the whole class. We have studied about, किसके बारे में पढ़ा हमने? Electron gain enthalpy. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। These are two major topics for today's class. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 2 टॉपिक्स हैं आज की मेजर क्लास के। प्लीज राइट ऑल द एक्सेप्शंस इन योर नोटबुक, ठीक है। आप लोगों ने नोटबुक बना रखी होगी केमिस्ट्री की, ठीक है। Please write Yes, it ma'am. in your notebook, all exception, highlight in your NCERT as well, ठीक है। Because इसमें in this chapter exceptions are important, ठीक है। General trend is not very important, exceptions are important, ठीक है। Write all the exception for ionization energy, electron gain enthalpy, है ना, atomic radii, ठीक है। Write all the exceptions, ठीक है। And don't forget to बताओ, ठीक है। ओके बच्चे, अगेन आई रिपीट कि do NCERT in text question as well as back exercise question. Also do your homework very with sincerity, ठीक है। ओके, दिस इज बच्चे, दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्लास को कैसे लेते हो, ठीक है। ये अब टीचर ने तो अपना काम कर दिया, आप लोग किस तरीके से अब इस चैप्टर को, हाउ विल यू प्रिपेयर दिस चैप्टर ऑन योर ओन, ठीक है। नाउ इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू. If you have any doubt, you can reach out to me.
यू कैन टेक्स्ट मी फर्स्ट, ठीक है, डोंट कॉल मी फर्स्ट, ठीक है, जस्ट टेक्स्ट मी फर्स्ट, आई विल रिवॉर्ड यू, ठीक है, ओके।